अखिलेश मसीह के निवास स्थान पर होगा। सो आप इस परिवार में उपस्थित होकर अपनी संगति और सहभागिता प्रदान करेंगे। रविवारी आराधना फेसबुक में ऑनलाइन होता है और दोपहर 2 बजे के बाद उसको यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया जाता है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा संदेश है और उसको अवश्य सुने, उसको पढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों से अच्छी रीति से परिचित होकर उसके आशीष को प्राप्त करें। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना विशेष गीतों के द्वारा से हम करेंगे और मैं इंजल साहब को आमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ इन गीतों को गाने में सहायता करेंगे। हमारे पास सॉन्ग ऑफ प्रेज गीत पुस्तक है और उसमें जो अंग्रेजी गाने हैं सामने साइड शुरुआत में, उन गीतों को आज हम गाएंगे। गीत नंबर 415, माइटी इज़ अवर गॉड, माइटी इज़ अवर किंग, माइटी इज़ अवर लॉर्ड, रूलर ऑफ एवरीथिंग। गीत नंबर 415। Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for He has created everything. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for He has created everything. सामर्थी है ईश्वर, सामर्थी है राजा, सामर्थी है प्रभु, सब पर राज करता। महिमा ईश्वर की, महिमा राजा की, महिमा प्रभु की, सब पर राज करता। उसका नाम ऊंचा है, ऊंचा सब नाम पर, महान उसकी सामर्थ, क्योंकि बनाया सब उसने। सामर्थी है ईश्वर, सामर्थी है राजा, सामर्थी है प्रभु, सब पर राज करता। महिमा ईश्वर की, महिमा राजा की, महिमा प्रभु की, सब पर राज करता। उसका नाम ऊंचा है, ऊंचा सब नामों पर, महान उसकी सामर्थ, क्योंकि बनाया सब उसने। Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. हम इसी के साथ सॉन्ग ऑफ प्रेज का जो इंग्लिश गाने हैं उसका 352 लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई, लॉर्ड आई लव टू सिंग योर प्रेज। प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं अपने जीवन में तुझसे आनंदित हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बचाया। तू मेरे लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र में गया और मेरे लिए मुर्दों से जी उठकर तू स्वर्ग में चला गया। प्रभु मैं तेरा नाम तो ऊंचा उठाता हूँ। लॉर्ड आई लिफ्ट योर नेम ऑन हाई, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to
the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the heart to the cross. My gift to be from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. हम इंग्लिश सॉन्ग का ही गीत नंबर 309 को हम गाएंगे। 309 होली स्पिरिट thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome in this place. इंग्लिश सॉन्ग का 185 नंबर 185। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अनंत काल तक के लिए है। उसकी करुणा हर सुबह नई होती जाती है। द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. गीत नंबर 195 195 वॉकिंग विद जीसस। Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. यीशु साथ चलते, प्रतिदिन चलते, पूरी रात चलते, यीशु साथ चलते, यीशु साथ चलते सदा। चलते चाहे धूप हो, चलते चाहे छाँव हो, प्रतिदिन चलते, पूरी रात चलते, चलते चाहे धूप हो, चलते चाहे छाँव हो, यीशु साथ चलते सदा। यीशु साथ चलते, प्रतिदिन चलते, पूरी रात चलते, यीशु साथ चलते, यीशु साथ चलते सदा। चलते चाहे धूप हो, चलते चाहे छाँव हो, प्रतिदिन चलते, पूरी रात चलते, चलते चाहे धूप हो, चलते चाहे छाँव हो, यीशु साथ चलते सदा। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शिक्षा के लिए हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद और 14 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 1 से लेकर 3 पद में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारी आत्मा प्राण शरीर पर नियंत्रण कीजिए और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटियों पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वचन की सेवकाई के लिए आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए। अपने इनॉन्टिंग पावर को रिलीज़ कीजिए। जहाँ तक कि आवाज़ जा रहा है परमेश्वर, उस जगह को अपने अनुग्रह और अपने उपस्थिति से भरिए। वेदिक के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। हम रविवारी आराधना में इन क्राइस्ट रेवलेशन, मसीह में प्रकाश विषय पर श्रृंखलाबद्ध रीति से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज हम मसीह में प्रकाश भाग 13 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकम फ्लेश। मनुष्य कैसे, परमेश्वर कैसे मनुष्य बना, परमेश्वर कैसे मनुष्य बना। आज हम इस विषय को हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब आदम ने पाप किया, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो आदम परमेश्वर के जीवन को और परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया। आदम परमेश्वर की संगति से दूर चला गया और आदम के साथ ही साथ संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर से दूर चला गया।
और इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते, जब हम नया जन्म प्राप्त करते, तो नया जन्म के साथ ही साथ हमें परमेश्वर का जीवन प्राप्त होता है, परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है। नया जन्म पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये सब हमारे उद्धार में शामिल है। जब कोई कहता है कि मेरा उद्धार हुआ है, मेरा छुटकारा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने नया जन्म को प्राप्त किया है, परमेश्वर के जीवन को, उसकी धार्मिकता को, उसकी स्वभाव को, उसकी सामर्थ्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, तो संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु मसीह में था। क्रूसीकरण में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, उसके कब्र पर गाड़ा जाना और उसका जी उठना शामिल है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, हम सब मारे गए। यीशु मसीह उद्धार में नया जन्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और परमेश्वर की धार्मिकता, ये सब शामिल है। और उसी प्रकार से क्रूसीकरण में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, कब्र पर गाड़ा जाना और उसका जी उठना शामिल है। हम पाते हैं कि उत्पत्ति 4 अध्याय में जब कैन और हाबिल ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, तो परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो कैन क्रोधित हो गया और इस प्रकार से शैतान जो है कैन के अंदर में घुस गया और हाबिल की हत्या कर दिया। एक भाई का हत्या हो गया और दूसरा भाई हत्यारा हो गया। परमेश्वर का योजना यहाँ पर लगभग समाप्त हो गया था। और तब परमेश्वर ने आदम हवा के द्वारा से एक और संतान को उत्पन्न किया, जिसका नाम उन्होंने सेत रखा। यदि आप इस संसार में शैतान के कामों को असफल करने में लगे हुए हैं, तो निश्चय शैतान आपको रोकेगा। यदि आप परमेश्वर के काम करेंगे या परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के साथ आप चलेंगे, तो शैतान निश्चय आपको रोकने का प्रयास करेगा। निश्चय आपको रोकने का प्रयास करेगा। जितने भी लोग धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे सब लोग सताए जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हाबिल अपने भाई के द्वारा से सताया गया और उसकी हत्या कर दिया गया। शैतान की सारी बुराई आदम के द्वारा से संपूर्ण मानव जाति में फैल गया। आदम के द्वारा से सारे मानव जाति पाप के अधीन आ गया। पुराने नियम में लोग अपने पापों को ढांपने के लिए जानवरों का बलिदान करते थे, जानवरों का लहू बहाया जाता था, परंतु जानवरों का बलिदान या उसका लहू अस्थायी था। वो लोग अपने बदले में एक पशु को बलिदान करते थे और इस बलिदान के द्वारा से वे लोग नरक से तो बच गए, परंतु स्वर्ग भी नहीं गए। और इसलिए परमेश्वर ने एक स्थायी उपाय किया ताकि मानव जाति को शैतान के बंधन से, पाप से और मृत्यु से छुड़ाया जा सके। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उस प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा से मृत्यु को नाश किया गया। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा से मृत्यु को संतुष्ट किया गया और स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हुआ। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। पाप के भुगतान मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए पाप का मजदूरी मृत्यु लिया, अपने आप को मृत्यु के अधीन कर दिया, तो स्वर्ग का न्याय संतुष्ट हुआ। पूरे संसार में परमेश्वर 2 व्यक्तियों के द्वारा से कार्य किया। पहला आदम जो अदन की बाग में था, और दूसरा आदम जो कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। अंतिम आदम स्वयं प्रभु यीशु मसीह था और उसने सारे मानव जाति के अधर्म को अपने ऊपर लिया। सारे मानव जाति में से कोई भी मनुष्य को पाप से नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि आदम में सब पापी थे। आदम के पाप के कारण से संपूर्ण मानव जाति पापी था और इसलिए एक पापी
दूसरे पापी को नहीं बचा सकता था और इसलिए परमेश्वर को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर स्वयं आना पड़ा। जब परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य को छोड़ दिया तो उसको बचाने के लिए कोई उपाय नहीं था। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया तो परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की धार्मिकता ने मानव जाति को छोड़ दिया और मनुष्य पापी हो गए और उसको बचाने के लिए पुराने नियम में कोई भी उपाय नहीं था। लोग केवल अपने पाप को ढांपने के लिए पापों के बदले में बलिदान करते थे। पुराने नियम में जो कुछ भी हुआ उनके चुनाव के कारण से हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था। परमेश्वर ने सारे मानव जाति को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है और आज जब हम स्वतंत्र इच्छा से हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमारे निर्णय का सम्मान करता है, हमारे निर्णय का परमेश्वर आदर करता है। आप निर्णय ले सकते हैं इस नए वर्ष में कि मैं यीशु के साथ चलूंगा, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो या बरसात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। आप एक निर्णय ले सकते हैं और प्रभु आपके साथ में होगा। आप निर्णय ले सकते हैं कि इस नए साल में मैं निश्चय ही आशीषित बनूंगा, तो आप आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आपके निर्णय का सम्मान करेगा। आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करूंगा और आप जो भी निर्णय लेंगे परमेश्वर उसका सम्मान करेगा। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नहीं था जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस धरती पर आ सके। पाप से छुटकारे के लिए, पाप से बचाव के लिए इस संसार के पास कोई भी उत्तर नहीं है कि हमारे पापों से हमारा छुटकारा कैसे होगा, हम पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो बाइबल में इसका जवाब हम पाते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के सारे समस्याओं का उत्तर है। मनुष्य पापी था तो प्रभु यीशु मसीह पापी बन गया। मनुष्य श्रापित था तो प्रभु यीशु मसीह श्रापित बन गया। मनुष्य रोगी था तो प्रभु यीशु मसीह रोगी बन गए। मनुष्य कंगाल हो गया था तो प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के दुख को, दर्द को, उनकी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, आपके सारे समस्याओं का उत्तर केवल यीशु मसीह है। इस संसार के पास पापों से मुक्ति का कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। उत्तर केवल परमेश्वर के पास में है। उत्तर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, जब आप गवाही देते हैं, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो ये काम प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। ये मेरा और आपका कार्य नहीं है, परंतु ये काम प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए तो हमको अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर देना है। प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए तो अपनी इच्छा को प्रभु के हाथों में समर्पित करना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथ में समर्पित किया और कहा कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब अपने आप को हम समर्पित कर देंगे कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, तब पवित्र आत्मा हमारी इच्छाओं में होकर, हमारी भावनाओं में होकर, हमारे निर्णय के अनुसार हमारे द्वारा से परमेश्वर की काम को करेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय निकालें। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से आगे को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस संसार में आप चाहते हैं कि आप जगत की ज्योति बनकर, परमेश्वर की संतान बनकर, परमेश्वर का सेवक, उसकी सेविका बनकर जीवन व्यतीत करें, तो उसके लिए है मूल बात हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। आदम जब आज्ञा उल्लंघन किया तो शैतान का स्वभाव उसके अंदर में आ गया। जब एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, अपना जीवन समर्पित करता है, नया जन्म को प्राप्त करता है, तो वो परमेश्वर का जीवन को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की सामर्थ्य को और परमेश्वर की स्वभाव को प्राप्त करता है। तो पौलुस यहाँ पर कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? तो हम गलतियों 5 अध्याय 22-23 में हम आत्मा के 9 फलों के बारे में पढ़ते हैं।
आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा के जो 9 फल है वो आत्मा का प्रगटीकरण है, प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। यदि आप कहते हैं कि मैं नया जन्म प्राप्त किया हूं, मैंने उद्धार प्राप्त किया है, तो आप कहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। और इस संसार में लोग आपके साथ चाहे कैसा भी व्यवहार करें, हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें चलते हुए परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से प्रकट होने देना है। प्रभु यीशु मसीह के जब निंदा हुआ, उसका अपमान किया गया, उस पर आलोचना किया गया या उसको प्रताड़ित किया गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर को ऊंचा उठाया। 6वां पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है और वचन देहधारी हुआ। तो यहाँ पर पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। क्राइस्ट वाज ट्रूली गॉड। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर है। यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर है और वो अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को एकदम नम्र कर दिया, छोटा कर दिया। स्वर्ग की पूरी महिमा को उसने त्याग दिया। 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। प्रभु यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर था। हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पाते हैं, जब शाऊल, जो बाद में पौलुस कहलाया, वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था यरूशलेम के कलीसिया से अधिकार पत्र लेकर कि यदि कोई मसीह विश्वास में पाया जाए तो उनको पकड़ कर बंदीगृह में, जेल में बंद करा दे। वो मसीहों को सताया करता था, मसीह विश्वासियों को प्रताड़ित करता था, उनकी प्रार्थना सभाओं को भंग करता था। और जब दमिश्क के रास्ते में यरूशलेम से अधिकार पत्र लेकर जा रहा था तो बाइबल में लिखा है कि उसके चारों तरफ ज्योति चमकी और एक आवाज सुनाई दिया, हे साउल, तू मुझे क्यों सता रहा है? तू मुझे क्यों सता रहा है? साउल को आवाज सुनाई दिया और साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। यदि कोई मसीह विश्वासियों को सता रहा है तो सही मायने में वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है। और प्रभु कहता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है? और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है तो प्रभु यीशु मसीह उनसे स्वयं ही उसका सामना करेंगे, उससे स्वयं ही निपट लेंगे। परमेश्वर का जीवन हमारे भीतर में है, हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे अंदर में परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन, मनुष्य के मन को मनुष्य का मन जानता है और परमेश्वर के मन को पवित्र आत्मा जानता है और हमारे अंदर में मसीह का मन है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर की भली इच्छा, भावती इच्छा और सिद्धि इच्छा को हम जान सकते हैं। पौलुस रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे बुद्धि के नया हो जाने से। जब आप बुद्धि को नया करेंगे, जब अपने सोच को नया करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब अपने आप को, अपने सोच विचार को नया करेंगे, तब आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकेंगे। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं या जो लोग प्रार्थना नहीं करते या जो लोग वचन को नहीं सुनते हैं, वे हमेशा दूसरों के पास जाते हैं और ये पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि उनको परमेश्वर की इच्छा सचमुच में मालूम नहीं होता है। लेकिन यदि परमेश्वर के मन को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी योजना, सब कुछ अपने वचन में रख दिया है। और जब वचन को हम अपने अंदर डालते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का मन है। प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मतलब
जो जीवन परमेश्वर में है वही जीवन प्रभु यीशु मसीह में है और वही जीवन मुझ में और आप में है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के तुल्य हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के समान सेम कैटेगरी में हैं। जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है वही जीवन मुझ में और आप में है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरन मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, परमेश्वर के साथ था, स्वयं परमेश्वर था, सारे सृष्टि की रचना किया, लेकिन कभी भी अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा नहीं किया। अपने आप को कभी भी परमेश्वर से ऊंचा नहीं किया। उसने हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाया। और प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया कि चेला अपने गुरु से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाया और हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थितियों में परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए। 7वें पद में लिखा है फिलिप्पियों 2:7 में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया और वो मनुष्य के समानता में आ गया। मनुष्य पापी था, मनुष्य श्रापित था, मनुष्य रोगी था, मनुष्य कंगाल था और मनुष्य नरक का भागी था। मनुष्य के अंदर में न्याय घोषित कर दिया गया था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे समान बन गया, हमारे तुल्य बन गया। वो पाप बन गया, वो रोगी बन गया, रोग से उसकी जान पहचान थी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया और हमारे लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हमारे लिए वो अधोलोक में गया और हमारे लिए वो मृत्यु का स्वाद को चखा और हमारा पूरा दंड उसने उठाया, पूरा सजा उसने अपने ऊपर लिया और हमको छुटकारा प्रदान किया। पद 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, वो मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भी स्वतंत्र इच्छा दिया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वतंत्र इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया और उसने कहा कि हे पिता, मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पहले आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और उन्होंने स्वतंत्र इच्छा से आज्ञा उल्लंघन करने का निर्णय लिया और आज्ञा उल्लंघन के कारण से वो पाप बन गया। परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया, परमेश्वर के स्वभाव खो दिया, परमेश्वर की संगति को खो दिया। आदम के साथ साथ सारे मानव जाति स्वर्ग को खो दिया। फिर भी परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया और उनको छुड़ाने के लिए वो स्वयं इस धरती पर इंसान बन गया। हमारे समान, हमारे सेम कैटेगरी में, हमारे दर्जे में वो आ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु को सह लिया, वो आज्ञाकारी रहा। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का लेखक कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में आंसू बहा कर और जोर जोर से पुकार कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 बातें वहां पर हम पाते हैं कि वो पुकार कर और आंसू बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। भक्तिमय जीवन, यदि हम भक्तिमय जीवन व्यतीत करते, यदि हम यीशु के साथ हम चलते तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसी भी मौसम क्यों ना हो, यदि आप यीशु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हर प्रार्थना को उत्तर देंगे। और दूसरा, वो दुख उठा कर आज्ञा का पालन किया, दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, आज्ञा पालन किया। वो दास के समान, कुकर्मी के समान, अधर्मी के समान वो मृत्यु दंड को भी गले से लगा लिया, मृत्यु दंड को भी गले से लगा लिया। पुराने नियम में इब्राहिम का पुत्र इसहाक अपने आप को समर्पित कर दिया कि उसका पिता उसको बलि करे, परंतु परमेश्वर ने उसको बलि करने नहीं दिया और एक मेमने का प्रबंध किया और परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को उसके स्थान पर बलि किया।
ताकि सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह में होकर छुटकारा प्राप्त करे और जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान ले लिया, हमारे बदले में हमारा प्रतिनिधि बनकर वो पाप के मजदूरी मृत्यु को गले से लगा लिया। वो हमारे लिए अधलोक में चला गया, हमारे लिए वो मृत्यु का दुख को सहा, मृत्यु का स्वाद वो चखा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता वो उसको विवश कर दिया स्वर्ग को कि जब न्याय का दंड पूरा हो गया और जब स्वर्ग संतुष्ट हो गया, तो स्वर्ग इस बात से जब संतुष्ट हो गया कि मनुष्य के सारे पापों का दाम चुका दिया गया है, प्रभु ने घोषणा किया इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया। तो स्वर्ग जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जीवन की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को जिलाया और उसको धर्मी ठहराया। और जब उसकी आत्मा देह में प्रवेश किया तो पुनरुत्थान हो गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं कहलाया, वो केवल यीशु कहलाया, वो केवल दाऊद का संतान कहलाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं कहलाया। वो प्रभुता को और मसीह शब्द जो टाइटल जो मिला है प्रभु यीशु मसीह, ये उसके पुनरुत्थान के बाद उसको मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आ गया था और वो एक दास के समान, एक सेवक के समान वो पिता की सेवा किया। यहाँ तक कि वो अपने चेलों के पैर तक प्रभु यीशु मसीह ने धोया और यीशु मसीह ने सिखाया यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहे तो वो तुम्हारा सेवक बने। यदि कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो तुम्हारा सेवक बने। हर इंसान इस संसार में बड़ा बनना चाहता है, हर इंसान इस दुनिया में वो बड़ा होना चाहता है। बड़ा बनने का हमारा उद्देश्य बड़ा बनना ही है, परंतु उसका फार्मूला है वो सबका सेवक बने। परमेश्वर ने आदम को अदन की बाग में रखा और उसको सेवा सौंपा ताकि वो पूरे अदन की बगीचे का और सारे जीव जंतुओं का देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं इस संसार में तो आपको सेवक बनना होगा, सबको सेवा करना होगा। प्रभु यीशु मसीह दास के समान, एक सेवक के समान वो सेवा किया। छोटे बड़े सबका सेवा करना है। संसार के लोग ऊपर से सेवा करते हैं और मसीही लोग नीचे से सेवा करते हैं। परमेश्वर ने अपनी समानता का परिचय मनुष्य बनकर दिया। जब हम उत्पत्ति पहला अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, तो परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था उसी ने उसको प्रकट किया। मतलब परमेश्वर प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह में और उसने परिचय दिया मैं बिल्कुल तुम्हारे समान हूँ, मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ, तुम मेरे स्वरूप और समानता में हो, तुम मेरे छाया हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। नम्र किया का मतलब है परमेश्वर के आज्ञाओं के आगे अपने आप को सौंप देना, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को सौंप देना, परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। नम्रता का मतलब है परमेश्वर के आज्ञा के आगे अपने आप को सौंप देना। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ तक आज्ञा करेगा? मृत्यु तक आज्ञा करेगा। एक चरम सीमा मनुष्य के जीवन के लिए मृत्यु है, इससे ज्यादा और क्या होगा? लोग डरते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी। और मसीह विश्वासी जानते हैं कि मौत हमारा अंत नहीं है, परंतु मौत हमारा प्रमोशन है, एक द्वार है जो अनंत के लिए द्वार खुलता है और जहां हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु तक आज्ञा करे रहा। वो अपने इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। परमेश्वर और मृत्यु दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर और मृत्यु दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, हमारी समानता में आ गया। वो प्रभु नहीं कहलाया इस पृथ्वी पर, मसीह नहीं कहलाया इस पृथ्वी पर, वो केवल यीशु कहलाया। और पुनरुत्थान के बाद उसको परमेश्वर ने अधिकार उसको दिया, ये टाइटल, ये महिमा, ये आदर, ये सम्मान उसको दिया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। क्रूस की सजा ये रोमी शासन दिया करता था। क्रूस की सजा रोमी सरकार के द्वारा से दिया जाता था और उसको व्यक्ति को जीवित क्रूस पर उसके हाथ और पैरों को खिले ठोक कर रास्ते पे लटका दिया जाता था और वो सप्ताह भर में वो तरफ तरफ कर
भूख और प्यास में, ठंड और गर्मी में वो बहुत मुश्किल से उनका प्राण छूटता था। रास्ते से जब लोग गुजरते थे तो उसे हिलाकर करते थे, हाँ जरूर इसने कोई पाप किया होगा, ये बहुत ही कुकर्मी है, और इसलिए बहुत ही क्रूरता के साथ ये दंड उनको दिया जाता था। रोमी साम्राज्य बहुत ही कठोर शासन था, और अपने अपराधियों को वो छोटी छोटी सजा नहीं, परंतु जब मृत्युदंड देते थे तो क्रूस की सजा दिया करता था। और उस समय इस्राएल में रोम का शासन था। प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहा, छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहा। और जब उनके सामने बड़ी चुनौती आया कि उसको सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण देना है, तो प्रभु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमें परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन छोटी छोटी बातों में अभ्यास करना चाहिए, छोटी छोटी बातों का पालन करना चाहिए। जो छोटे से छोटे आज्ञा का पालन करता है वो बड़ी आज्ञा का भी पालन करेगा। प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहा, और जब बड़ी चुनौती आया, बड़ी चैलेंज आया उसके सामने में, तो वो लगातार आज्ञाकारी बना रहा। यीशु क्रूस का मृत्युदंड को सह लिया क्योंकि उसके आगे आनंद था। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु दंड को भी सह लिया क्योंकि मृत्यु के आगे पुनरुत्थान था, मृत्यु के बाद जीवन था, वो बहुतायत का जीवन था, और वो संपूर्ण मानव जाति के लिए था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया ताकि अनेक पुत्रों को प्राप्त कर सके। 9 से 11 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आया, धरती से वो क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र में गया और कब्र से अधलोक में गया। हम पाते कि प्रभु यीशु मसीह नीचे नीचे और नीचे चला गया, अपने आप को एकदम शून्य कर दिया, और परमेश्वर ने उसको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा किया। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। याकूब कहता है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। और दीनता का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। नम्रता का मतलब है परमेश्वर की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर देना। नम्रता का मतलब है कि प्रभु के पीछे चलना, वॉकिंग विद जीसस एलोन। चाहे कोई चले या ना चले, आपको अकेले ही चलना है। हम बोलते नहीं, सब लोग चलेंगे तो हम चाहेंगे, लेकिन प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब उसके नाम पर घुटना टेके। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम का सब लोग आदर करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम का सब सम्मान करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का हर कोई पालन करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नाम दिया। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यदि तुम मेरे नाम से पहाड़ से कहो कि उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने हमको वो नाम दिया है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। यीशु हमारे जीवन के सारे समस्याओं का उत्तर है। प्रभु के सामने नम्र बने, दीन बने। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमको इस संसार में सृजा रचा और बनाया है और हमको जीवितों के बीच में रखा है। ये उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। उसकी करुणा हर सुबह हमारे जीवन में नई होती जाती है। प्रति सुबह जब उठे तो कहें, यीशु धन्यवाद, तू मेरा प्रभु है, तूने मुझे आज का दिन दिखाया, मेरे जीवन में परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गलतियों 4 के 4 पद में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह अचानक से नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के से पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में
पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा सारी बातें बतला दिया गया था। वो कब जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किस प्रकार का बालक होगा, उसकी सेवकाई कैसे होगी, वो किस प्रकार से इस संसार में जीवन व्यतीत करेगा, क्या शिक्षा वो देगा, किस प्रकार से वो मरेगा और किस प्रकार से वो जी उठेगा और कैसे वो दोबारा आएगा, ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा से पहले से बता दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह स्त्री के द्वारा से जन्म लिया। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने यह डिक्लेयर किया था कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे स्त्री को कुचलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह स्त्री का वंश है, जो उत्पत्ति 3:15 में जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, मूसा की व्यवस्था के अधीन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। और मत्ती 5 अध्याय और उसके 17 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। लोग सोचते थे कि यह व्यवस्था को पालन करना बहुत कठिन है, प्रभु यीशु मसीह हमको व्यवस्था से स्वतंत्र करेगा, परंतु प्रभु ने कहा, मैं ये मत समझना कि मैं व्यवस्था की या भविष्यवक्ताओं की जो नियम है या उनके विधि है उसको लोप करने के लिए आया हूँ, मिटाने के लिए आया हूँ। मैं उस मिटाने के लिए नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। पुराने नियम में मूसा के द्वारा से जो व्यवस्था दिया गया था, वो सारी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ और उसको पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह पिता के आज्ञाओं को पूरा किया, पुराने नियम के बलिदान को पूरा किया, मनुष्य के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु दंड को उसने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से हटकर अपने आप को परमेश्वर के वचन में देखा। प्रभु यीशु मसीह ने केवल व्यवस्था का ही पालन नहीं किया, परंतु व्यवस्था के ऊपर वो परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था। वो स्वयं परमेश्वर था और वो परमेश्वर की बातों को जानता था। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 19वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 19वां पद। यहाँ लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कोई काम नहीं करता हूँ, मेरा कार्य पिता का कार्य है। जो मैं पिता को काम करते देखता हूँ वही काम मैं इस पृथ्वी पर करता हूँ। प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जब हम सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो ये कार्य प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। और जब प्रभु यीशु मसीह का आप काम करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की आप सेवा करेंगे, भले ही संसार के लोग आपका आदर ना करें, इस संसार के लोग भले आपकी सेवा का कदर ना करें, परंतु प्रभु कहता है, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। और इसलिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कार्य है परमेश्वर की सेवा करना। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर पिता का काम को किया। उसने कहा, मेरी इच्छा यह है कि मैं पिता की काम को मैं पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह का अभिलाषा था परमेश्वर के काम को पूरा करना। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर प्रभु ने कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ, जो उपदेश मैं दे रहा हूँ, वो मेरा उपदेश नहीं है परंतु मेरे पिता का शिक्षा है, मेरे पिता का उपदेश है। माई टीचिंग इज नॉट माई ओवन बट हिज हु सेंट मी। मेरी जो शिक्षा है वो मेरा नहीं परंतु मेरे पिता का है जिसने मुझको भेजा है। और जब मैं भी यहाँ पर बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, प्रभु आप मुझ में होकर के बोलिए, आप मेरे साथ खड़ा होइए। और इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरी शिक्षा नहीं परंतु ये परमेश्वर की शिक्षा है। और जब परमेश्वर बोलता है तो उसको सुनना चाहिए, और जब परमेश्वर वचन को सुनते हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए, और जब वचन को आप ग्रहण करते हैं तो उसका पालन भी करना चाहिए। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उन्हें जीवन देता हूँ और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकती। जब वचन को आप सुनते हैं, वचन को ग्रहण करें, वचन का पालन करें, और प्रभु कहता है मैं उन्हें जीवन प्रदान करता हूँ।
यूहन्ना 12 अध्याय उसका 49 और 50 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 49 और 50 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। यहाँ पर प्रभु ने कहा परमेश्वर ने मुझे भेजा है और परमेश्वर ने मुझको जो आज्ञा दिया है मैं उनकी आज्ञा पालन करता हूँ। जो मुझे बोलने के लिए प्रभु ने सिखाया, जो बोलने के लिए मुझे कहा, मैंने पिता को जो बोलते हुए सुना है, मैंने वही बातें तुमसे बोला है। 50 पद में, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। प्रभु ने कहा उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। His commandment is eternal life. I speak just as the Father was told me. प्रभु ने कहा जो मैं बोल रहा हूँ मैंने पिता को बोलते सुना, वही मैं तुमसे बोल रहा हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 10वां पद। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने जीवन में पिता को महत्व दिया। मेरा कार्य मेरा काम नहीं है, ये पिता का कार्य है। मेरा शिक्षा मेरी शिक्षा नहीं है, परंतु मेरे पिता की शिक्षा है। प्रभु ने कहा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता मुझ में रहकर अपनी ओर से बोलता है और पिता जो है मुझ में रहकर अपना काम करता है। इस संसार में परमेश्वर ने हमको 2 गिफ्ट दिया है। नया जन्म के साथ में, उद्धार के साथ में 2 गिफ्ट दिया है। पहला गिफ्ट पवित्र आत्मा है और दूसरा गिफ्ट परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में वास करता है। हर एक विश्वासियों के अंदर जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया हुआ है, चाहे आपको मालूम हो या मालूम ना हो, आपको उसका एहसास हो या ना हो, नया जन्म के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हर एक विश्वासियों को, नया जन्म प्राप्त व्यक्ति को प्रभु ने पवित्र आत्मा वरदान के रूप में दिया है, गिफ्ट के रूप में दिया है। यूहन्ना 14 अध्याय के 14 पद से आगे जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस बात को कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूंगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा। वो सहायक पवित्र आत्मा है जो हम में वास करता है, जो हमारे ऊपर रहता है, जो हमारे सामने रहता है, हमारे दाएं बाएं रहता है, हमारे चारों तरफ रहता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तो वो रेस्ट करने के लिए या आराम करने के लिए नहीं आया है, वो हम में रहता है ताकि हमारे द्वारा से पिता का काम हो, हमारे द्वारा से पिता का काम हो। आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, पवित्र आत्मा मिला है, तो पिता का काम कहाँ है? यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो पिता का इच्छा क्यों पूरा नहीं हो रहा है? पिता का काम आपके द्वारा से क्यों नहीं हो रहा है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारा सीनियर पार्टनर है। होली स्पिरिट इज अवर सीनियर पार्टनर। पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है जो परमेश्वर का काम करता है। तो पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपना हृदय, अपना मुंह, अपना आँख, अपना कान, अपना पैर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने नियंत्रण में ले और मेरे द्वारा से परमेश्वर को प्रकट कर, मेरे द्वारा से यीशु मसीह को प्रकट कर, मेरे द्वारा से अपना जीवन को, अपने प्रेम को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर। और आप जाएंगे, आप जहाँ भी कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर अपने आप को, पवित्र आत्मा आपके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेगा। उसका यही काम है। प्रभु ने कहा मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और पिता मुझ में रहकर बोलता है। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, पिता मुझ में रहकर बोलता है और पिता मुझ में रहकर काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? वो भलाई का काम करता फिरा। जो बीमार थे उनको चंगाई दिया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया। प्रभु ने लोगों को शांति प्रदान किया। और इस संसार में हमारा काम यही है कि हम अपने जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। और इस संसार में आज मनुष्य की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, बस 3 चीज। और इस 3 चीज को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा एफर्ट, अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा ताकत लगा देते हैं। परमेश्वर के लिए उनके पास कोई समय नहीं है।
जबकि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर का है हमारे द्वारा से उसकी इच्छा को प्रकट करना। प्रभु ने कहा, आई एम इन द फादर एंड द फादर इज इन मी। मेरे अंदर में यीशु मसीह है और मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। यदि आपको कोई छूता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मेरी आंख के पुतली को छूता है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में है। यदि कोई आपको सताता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है। यदि कोई आपकी सहायता करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह की सहायता करता है। तो हम, प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। इसका मतलब परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 34वां पद, यूहन्ना 3 का 34 पद, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यदि परमेश्वर ने इस संसार में आपको भेजा है तो हमको केवल एक ही बात करना है और वह है केवल प्रभु यीशु मसीह की बातें करना है। समस्याओं की बात मत कीजिए, महामारी की बात मत कीजिए, कोरोना वायरस की बातें या उसकी चर्चा मत कीजिए, केवल यीशु मसीह की चर्चा कीजिए। हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो दुख सहा, हमारे लिए रोगी बना, हमारे सारे दुर्बलता को अपने ऊपर लिया, हमारी गरीबी को, अभागेपन को अपने ऊपर लिया, श्राप को अपने ऊपर लिया, हमारे लिए वो क्रूस पर प्राण दे दिया, हमारे लिए वो अधोलोक में चला गया, मृत्यु को सह लिया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित है, वो मुझ में जीवित है, वो मेरे द्वारा से वो काम करता है, मेरे द्वारा से वो बोलता है। केवल यीशु की बात करें, केवल परमेश्वर की बात करें। जहां लोग कहते हैं दुर्भाग्य है तो आप कहिए सौभाग्य है। लोग कहते हैं बहुत बुरे दिन आ गए हैं, कहिए बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। आप जो बोलेंगे प्रभु उसके द्वारा से अपने आप को प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको भेजता है उसको नाप नाप के आत्मा नहीं देता है। जैसे हम चावल बनाते हैं तो नाप के बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो कितना कप बनाना है नाप के बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमको देता है तो नाप नाप के नहीं देता है। कितना देता है? पूरा भर देता है। उसका स्वागत करें, होली स्पिरिट फिल दिस लैंड। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दे। और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में वास करता है। उसको कहिए, पवित्र आत्मा मुझे अपने उपस्थिति से भर दीजिए, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी आत्मा का गर्माहट दीजिए और वो आपको भर देगा अपनी उपस्थिति से। उनका स्वागत करें, क्योंकि परमेश्वर जिसको भेजता है उसको आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है, परंतु वो उंडेल देता है। गॉड गिव हिम द फुलनेस ऑफ हिज स्पिरिट। वो आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की भरपूरी देता है। गॉड गिव द स्पिरिट विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट का मतलब जितना, कोई उसका सीमा नहीं है। जितना बड़ा आपका कंटेनर रहेगा, जितना आपका पात्र रहेगा, उसको पूरा भर दिया जाएगा। और यदि लगातार भरेंगे तो पूरा भरने के बाद वो छलकने लगेगा, वो उमड़ने लगेगा, वो बहने लगेगा और वो सबको दिखाई देगा। वो भर चुका है, अब वो छलक रहा है, अब वो बह रहा है। और इस वजह से ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास में आए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आपके हृदय से परमेश्वर का जीवन बहेगा, परमेश्वर का प्रेम बहेगा, पवित्र आत्मा बहेगा, चंगाई की धारा बहेगी। आप जहां भी जाएंगे लोग चंगे हो जाएंगे। आपको छूने के द्वारा से लोग चंगे हो जाएंगे, आपके शब्दों से चंगे हो जाएंगे, आपके कार्यों से लोग चंगे हो जाएंगे। पूरा वातावरण को प्रभु अपनी उपस्थिति से भर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। हम परमेश्वर के वाचा के संदूक हैं, वाचा के संदूक हैं, हम उसके मंदिर हैं। जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमको हम लेके जाते हैं। पूरे स्वर्ग हमारे साथ होता है, स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ होता है और परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी हमारे साथ होता है। आप जहां भी जाएं कहें, परमेश्वर इस जगह को अपनी महिमा से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे। हर एक लोग आपके अंदर में उसके उजियाला को देखने पाए, उसके ज्योति को देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई और उसमें जीवन था और वचन देहधारी हुआ, मनुष्य का देह को धारण किया। परमेश्वर ने मनुष्य को, परमेश्वर के 3 ऑफिस है, परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर। उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं इस शरीर में रहता हूं। वास्तव में ओरिजिनल में मैं आत्मा हूं। आई एम द स्पिरिट, आई हैव ए सोल एंड आई लिव इन बॉडी। प्राण में 3 चीज शामिल है, माइंड, विल एंड इमोशन, मन, इच्छा और भावनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। आदम परमेश्वर के समान था, आदम परमेश्वर था इस पृथ्वी का, आदम इस पृथ्वी का शासक था। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर आदम, परमेश्वर हवा, और उसके बाद प्रभु ने कहा तुम सब ईश्वर हो, तुम सब ईश्वर हो, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे स्वरूप और समानता में हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समानता में प्रकट हुआ, मनुष्य बना, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारी समानता में बनाए गए। यीशु मसीह का प्रकट का जन्म ले आना, उसका प्रकट होना था। यीशु मसीह का शुरुआत नहीं था, परंतु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वो अनंत काल से था। यीशु मसीह का जन्म उसका शुरुआत नहीं था, केवल प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ इस संसार में मानव के शरीर में। यीशु पुत्र बना ताकि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। अब मेरे साथ निकालें इब्रानियों 7 अध्याय, सबको निकालिए। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय, इब्रानियों 7 अध्याय और 1 से लेकर 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर मलकीसेदक के बारे में लिखा है, यह मलकीसेदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। पुराने नियम में जो मलकीसेदक, जिसको इब्राहिम ने अपने सारे लूट का 10वां अंश दिया, जो सालेम का राजा था, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब इब्राहिम लूत को बचा के आ रहा था तो प्रभु यीशु मसीह से रहा नहीं गया, वो खुद इब्राहिम को आशीष देने के लिए आ गया और इब्राहिम को आशीष दिया, धन्य है परमेश्वर जिसने तुझे शत्रुओं के ऊपर में जयवंत किया। तो इब्राहिम ने उसको अपने लूट का 10वां अंश दिया और प्रभु यीशु मसीह जो मलकीसेदक के रूप में था उसको रोटी और दाख मधु पीने के लिए दिया, जिसके कोई अंत न आदि है और ना अंत है, ना कोई माता है ना पिता है ना कोई उसका वंशावली है। हमारा यीशु मसीह मलकीसेदक के समान युगान युग का याजक है, वह हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह मलकीसेदक के समान वो युगान युग का याजक बना हुआ है। और इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कब, कल, आज और युगान युग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। प्रभु यीशु मसीह जब मलकीसेदक के समान इब्राहिम के सामने था, वही यीशु मसीह मरियम के गर्भ में धारण किया और वही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे बीच में है। यीशु मसीह कल, आज और यीशु मसीह कल और आज और आने वाले दिनों में युगान युग एक समान रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का वही आदि है और वही अंत है, वो सनातन परमेश्वर है। यीशु मनुष्य जाति को आदम के पतन से बचाने के लिए मनुष्य बना। सृष्टि के निर्माण में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सक्रिय है। उद्धार के काम में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सक्रिय है। अब प्रश्न है कि परमेश्वर मनुष्य कैसे बना, वचन कैसे देह धारण किया। ये जो वचन मेरे और आपके हाथ में है, ये कैसे मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। आज हम इसका रहस्य को हम सीखते हैं। मेरे साथ चलिए लूका पहला अध्याय। लूका पहला अध्याय। मनुष्य
के रूप में परमेश्वर कैसे इस संसार में देह धारण किया, परमेश्वर कैसे मनुष्य बन गया। तो हम उसका उत्तर को हम पाते हैं 26 पद से लेकर के 38 पद में। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास में आता है और मरियम को संबोधित करता है और कहता है कि मरियम, तो स्त्री आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ में है। और मरियम इस अभिवादन से भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है और वो कहती कि कैसा अभिवादन है। अब तब स्वर्गदूत उसको समझाता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और मरियम स्वर्गदूत से कहती है कि कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। और तब पद 35 में स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम को सारी बातें बताया गया। तो स्त्रियों में धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र होगा। वो तेरा पुत्र नहीं कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा, वो उद्धार करता है। तो मरियम कहती है, मैं तो किसी भी पुरुष को नहीं जानती, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। और तब स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा और तू पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती ठहरेगी और पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तब यहाँ पर 36 और 37 पद में हम देखते हैं, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मरियम को एक गवाही के रूप में समझाया गया कि तेरी जो कुटुंबिनी एलिशिबा है, जो बांझ स्त्री है, जो बुजुर्ग अवस्था में है, वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी पुत्र को जन्म देने वाली है। और तब 37 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। स्वर्गदूत ने कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। पवित्र आत्मा परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह जो है वचन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और वो मरियम के बाजू में खड़ा है सफ़ेद घोड़े पे सवार। पवित्र आत्मा मरियम को ऊपर आने के लिए तैयार है और स्वर्गदूत घोषणा करता है, स्वर्गदूत घोषणा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में तब तक नहीं गया जब तक मरियम स्वयं अपने आप को समर्पित नहीं कर दी। स्वर्गदूत ने उसको चिन्ह बताया कि तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के जीवन में भी आश्चर्यक्रम हुआ है, वो भी अब गर्भवती है, वो भी पुत्र को जन्म देने वाली है। परमेश्वर का वचन कभी खाली लौट कर नहीं जाता, जिस काम के लिए उसको भेजा जाता है उस काम को वो पूरा करता है। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है कि मैं स्त्री के वंश के द्वारा से आऊँगा, शैतान के सिर को कुचलूंगा और सारे मानव जाति को मैं छुड़ाऊंगा, पाप से और मृत्यु से मैं छुड़ा लूँगा। पवित्र आत्मा ने मरियम को गर्भ ठहरने की सामर्थ्य दी। मरियम कहती है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। इसका मतलब है कि मरियम एक पवित्र और भक्त स्त्री थी। उसका जो मंगेतर था यूसुफ, वो भी बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। और ये दोनों, यीशु को दाऊद का संतान कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर दाऊद का संतान कहा गया है। मरियम और यूसुफ दोनों राजा दाऊद के वंश से और उसके खानदान से आते हैं। जब लोगों ने पुकारा तो कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के संतान कहलाया, मरियम और यूसुफ का संतान नहीं कहलाया, दाऊद का संतान कहलाया। यूसुफ दाऊद के वंश का था, यूसुफ दाऊद के वंश का था। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 1 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ पर मत्ती 1 अध्याय जब चालू होता है तो मत्ती यहूदियों के लिए लिख रहा है और यीशु मसीह को बताया कि यीशु मसीह कोई और नहीं है, इब्राहिम का वंश है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया है
तेरे वंश के द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। दाऊद के साथ प्रतिज्ञा किया है, तेरे खानदान में राजा पैदा होंगे, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम की संतान और दाऊद की संतान है, और उसके बाद इस पृथ्वी पर उसका वंश दिया गया है। और उसके बाद हम 6 पद को पढ़ते हैं। 6वां पद, और ईसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। अब यहाँ पर हम दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान आया, जो हित्ती उरिय्याह की पत्नी के द्वारा से उत्पन्न हुआ था। और पद 16 में लिखा है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो मत्ती जो वंशावली दिया है वो दाऊद, सुलेमान, यूसुफ का वंशावली दिया है। यूसुफ मरियम का पति था, परंतु यीशु मसीह तो मरियम का गर्भ में देह को धारण किया। यूसुफ को उसमें कोई योगदान नहीं था, यूसुफ तो केवल संरक्षक के रूप में था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मत्ती जो वंशावली दे रहा है, दाऊद, सुलेमान, यूसुफ का वंशावली दे रहा है। अब हम लूका 3 अध्याय को चलें। लूका 3 अध्याय और उसका 23वां पद। यहाँ पर भी लूका भी जब लिख रहा है तो ये अन्य जातियों के लिए लिख रहा है। और यहाँ पर हम पाते हैं यीशु मसीह का वंशावली। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का। यहाँ पर जो वंशावली दिया गया है वो मरियम का वंशावली है। प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देने लगा तो वो 30 साल का था, और जैसा कहा जाता है या समझा जाता है वो यूसुफ का पुत्र है, मतलब यूसुफ उसका गार्जियन है, उसका पिता है। और वो एली का, मतलब एली कौन है? तो एली यूसुफ का ससुर जी है, मरियम का पिता है। तो यहाँ पर जो वंशावली दिया गया है वो मरियम का वंशावली है। मरियम एली का बेटी थी, और यूसुफ उसका दामाद था। जीसस वॉज नोन एज द सन ऑफ जोसेफ, जोसेफ वॉज द सन ऑफ एली। और 31 पद में लिखा है 31, और वह मलेयाह का, और वह मिन्ना का, वह मत्ता का, वह नातान का, और वह दाऊद का। यहाँ पर दाऊद का जो वंशावली आगे बढ़ता है वो सुलेमान से नहीं बढ़ता है, परंतु नातान से आता है। यहाँ पर 2 वंशावली है, एक यूसुफ का, एक मरियम का। दोनों राजा दाऊद के खानदान से हैं। दाऊद, यूसुफ जो है दाऊद सुलेमान से आता है, और मरियम दाऊद नातान से आती है। यूसुफ एली का दामाद था, और एली मरियम का पिता है। प्रभु यीशु मसीह का एड्रेस कैसे होगा? यीशु मरियम का बेटा, और मरियम का पिता एली, और एली जो है नातान दाऊद के वंश से आती है। प्रभु यीशु मसीह का वंशावली दाऊद, नातान, एली, मरियम, जीसस। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है दोनों का, मरियम और यूसुफ के को वंश को राजा दाऊद से जोड़ते हैं। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इब्राहिम के संतान और दाऊद के संतान हैं। राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ गलत कार्य किया था, और इसलिए यहाँ पर यूसुफ का संतान यीशु नहीं बल्कि मरियम के सच्चे वंशावली से आते हैं। शैतान वंश को खराब करने का कोशिश किया था, और हमने पिछले संडे में इसको सीखा है। शैतान वंश को खराब करने का कोशिश किया, स्त्री के वंश के आने के लिए वो रोकने का बहुत कोशिश किया। मरियम एक पवित्र स्त्री थी, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय कुंवारी थी। मरियम का किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं था। इब्राहिम का बीज, इब्राहिम का वंश यहूदा गोत्र से आया। दाऊद का बीज या दाऊद का वंश मरियम के वंश में आया। मरियम और यूसुफ दोनों राजा दाऊद के घराने से थे। यहूदी लोग अपने अपने गोत्र से विवाह करके अपने अपने गोत्र को बनाए रखे। मरियम और यूसुफ राजा दाऊद के वंशज है। मरियम और यूसुफ में राजा दाऊद के राजघराने का खून है। यूसुफ एक बढ़ाई से बढ़कर एक ठेकेदार था। यूसुफ कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, परंतु वो अपने समय का वो ठेकेदार था। मरियम एक भक्त और एक पवित्र स्त्री थी, तभी स्वर्गदूत उसके पास में आया और उसको चुनाव किया गया। मरियम परमेश्वर के भय में चल रही थी और इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम से कहा गया जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। मरियम परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, मनुष्य के द्वारा से नहीं। त्रिएकता का दूसरा व्यक्तित्व परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र जो है मनुष्य बनकर देह धारण करने के लिए तैयार है, वचन देह धारण करने के लिए तैयार है, और पवित्र आत्मा उसको ऊपर छाया रहेगा, सामर्थ्य देगा। मरियम के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में देह धारण किया। मरियम के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया था। परमेश्वर की छाया आज भी हम सब के ऊपर में है, जो हमें जीवन देता है। जब मिस्र में विपत्ति डाला गया तो परमेश्वर की छाया इस्राएलियों के ऊपर में था। आज चारों तरफ महामारी फैला हुआ है, परंतु परमेश्वर की छाया उसके बच्चों पर हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर की छाया आज भी हम सब के ऊपर में है, जो हमको चंगाई देता है, जीवन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह वही सामर्थ्य है जो सारा को गर्भ ठहरने की सामर्थ्य दिया था, और इब्राहिम इस सामर्थ्य को जानता था कि मेरी पत्नी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से है। और स्वर्गदूत ने कहा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब स्वर्गदूत ने इस बात को कहा तो मरियम लूका पहला अध्याय के 38 पद में कहती है, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब आप अपनी इच्छा को समर्पित कर देते हैं, जब परमेश्वर के सामने नम्र बन जाते हैं, जब अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तब वचन देहधारी होता है। तब परमेश्वर हमारे द्वारा से कार्य करता है। पवित्र आत्मा मुझ में और आप में है। जब हम उसको अपने आप को सौंप देते हैं, वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को पूरा करता है और चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। मरियम के लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यहाँ मरियम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करती है और उसके लिए समर्पित होकर अंगीकार करती है। जब परमेश्वर का वचन मरियम के पास में आया, मरियम ने सुनी, उसको ग्रहण की और अपने आप को समर्पित कर दी, और वचन देहधारी हुआ। वचन में इस संसार में प्रकट हो गया। यूहन्ना 6 अध्याय 63 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कहा है वो जीवन है और आत्मा है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और वही जीवन है। परमेश्वर का वचन ही आत्मा है और वचन ही जीवन है। द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन टू यू आर स्पिरिट एंड आर लाइफ। आप खाली भावनाओं में आकर नाचेंगे कूदेंगे पवित्र आत्मा मिला है करके, तो एक बहुत बड़ी धोखा है। पवित्र आत्मा मिला है करके आप नाचेंगे कूदेंगे दिखावा करेंगे, एक बहुत बड़ी धोखा है। यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह ने कहा, माई वर्ड इज लाइफ एंड स्पिरिट। वही अनंत जीवन है और वही पवित्र आत्मा है। जब वचन के अनुसार हम चलेंगे तब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हमारे द्वारा से होगा, जो आत्मा के नव वरदान के रूप में उसका स्वभाव दिखाई देगा, और आत्मा के नव वरदान के द्वारा से उसका सामर्थ्य दिखाई देगा। जब हम आत्मा में चलेंगे तब आत्मा के फल और आत्मा के वरदान हमारे जीवन से प्रकट होंगे। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। द वर्ड ऑफ गॉड इज एलाइव एंड पावरफुल। परमेश्वर का वचन मरा हुआ नहीं है। जब वचन को आप मुंह से अंगीकार करेंगे मरियम के समान, वो जीवित हो जाएगा और वो सामर्थ्य रूप में आपके जीवन में काम करेगा। असंभव को वो संभव करने लगेंगे, चिन्ह और चमत्कार होने लग जाएंगे। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। परमेश्वर का वचन जीवित है और सक्रिय है, वो काम करता है। जिस काम के लिए उसको भेजा जाता है उस काम को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन बाधाओं को नहीं देखता। परमेश्वर का वचन आपके सामने एक ऐसी परिस्थितियां है, उस परिस्थिति को नहीं देखता, समस्याओं को नहीं देखता। परमेश्वर के लिए बाधा है तो आपका और मेरा जुबान, परमेश्वर के लिए यदि कोई बाधा है तो वो हमारा जुबान है। हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। कुंवारी मरियम गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दी।
परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर में है। वचन के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। पवित्र आत्मा वचन को हमारे जीवन में सक्रिय कर देगा, वचन काम करेगा। और जो आप निर्णय लेंगे, जो आप प्लान करेंगे, जो आप आदेश देंगे, आपके आदेश का, आपके निर्णय का, आपकी योजना का परमेश्वर सम्मान करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है और परमेश्वर हमारे द्वारा से इस पृथ्वी पर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। और इस नए साल में परमेश्वर हर एक उन विश्वासियों को जो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेगा, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करके प्रभु उसको पूंछ नहीं परंतु वो सिर बनाएगा और उनके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा, क्योंकि वो इस पृथ्वी के सारे लोगों को वो आशीषित करना चाहता है। आज हम मरियम के समान अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। पिता, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा वचन के अनुसार मैं चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। और तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, जैसा यीशु मसीह मरियम के गर्भ से प्रकट हुआ। सारा संसार ने यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा कार्य मेरे पिता का काम है, मेरी शिक्षा मेरे पिता का शिक्षा है, और मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता मुझ में होकर अपना काम करता है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे अंदर में यीशु मसीह भी आता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी आता है, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर में आता है। पूरे स्वर्ग दूत हमारे चारों तरफ आ जाते हैं, पूरा स्वर्ग हमारे साथ रहने के लिए आ जाता है। गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ, और इसलिए परमेश्वर के साथ हम चलने का निर्णय लें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 538 मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 538 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूंगा ज्योति में, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूंगा ज्योति में, ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में निश्चय होऊंगा जयवान की ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। जब हो मरने का समय ज्योति में, ज्योति में मुझे होगा कुछ ना भय उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में नित आनंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें
परमेश्वर इस संसार को आशीषित करना चाहता है। इस संसार के दुखी लोगों को प्रभु सांत्वना देना चाहता है। जो बीमार अस्वस्थ है प्रभु उनको चंगाई देना चाहता है। प्रभु अपने लोगों के दुख दर्द को दूर करके उनको आशीषित और उनको भरपूर करना चाहता है। और इसके लिए प्रभु अपने बच्चों को आशीष देकर उनके द्वारा से अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु अब मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं आज से पिता मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे पीछे चलूँगा। प्रभु से कहें, प्रभु इस नए साल में तू मेरे आगे आगे चल, मेरे लिए तू राह बना। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सारे बंद दरवाज़ों को तू खोल दे। मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा कर। मेरे द्वारा से परमेश्वर लोगों से बातें कर। मेरे द्वारा से लोगों को प्रेम कर। मेरे द्वारा से लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर। मेरे द्वारा से परमेश्वर लोगों को चंगाई प्रदान कर। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू आशीष पाएगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। तो तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। जब स्वर्गदूत ने कहा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब इस संदेश को मरियम सुनी तो कही, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज मरियम के समान अपने आप को कहें, प्रभु मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरी सेविका हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ। आज से तक प्रभु मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलता रहा, परंतु आज से प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन में तेरा वचन पूरा हो जाए, मेरे जीवन में तेरा वचन सक्रिय हो जाए, मेरे जीवन में तेरा वचन काम करने पाए। और प्रभु कहता है मैं अपने आप को इस संसार में लोगों के सामने प्रकट करूँगा तेरे द्वारा से, और तुम मेरे लिए इस संसार के लिए मेरी ओर से तुम साइन एंड वंडर्स बनोगे। मेरे लिए तुम एक साइन बोर्ड बनोगे। मेरे जीवन में मेरे द्वारा से तुम्हारे जीवन में लोग चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे, असंभव काम को संभव होते हुए भी देखेंगे, और तुम उजियाला बनकर इस संसार में लोगों के जीवन में प्रकाश को लाओगे। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे स्रोत के साथ आप हम में वास करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता, आप हमारे जीवन में निवास करते हैं, हमारे चारों ओर रहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी चारों तरफ स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी छाया हमारे ऊपर में है, जबकि राज्य के ऊपर में अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ महामारी छाया हुआ है, परंतु परमेश्वर तेरा तेज हमारे ऊपर उदय हुआ है। तेरी छाया हमारे ऊपर में, तेरी पंखों की तू अपने पंखों की आड़ में हमको छिपाया हुआ है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हम अपना जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे हाथों को आप थामें और इस जीवन यात्रा में हमारी सहायता अगुवाई करें। हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने आप को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर, अपने प्रेम को प्रकट कर। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी बातें तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जो वचन रूपी बीज बोया गया है हर एक विश्वासियों के जीवन में वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक फल को लेकर के आने पाए। हर एक विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर तेरा वचन देहधारी होने पाए। जो यहाँ पर उपस्थित है हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे, हर एक को अपनी महिमा से भर दे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने बच्चों को पिता परमेश्वर बिना नाप के आत्माएं देता है। मैं दुआ करता हूँ हर एक खाली पात्र को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे। जो वचन के भूखे और प्यासे उनको अपने वचन से और अपनी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर, जो बीमार अस्वस्थ है उनको आप चंगाई प्रदान करें। जो ज्ञान बुद्धि की समझ की आवश्यकता है मैं दुआ करता हूं उनको ज्ञान बुद्धि और समझ से भर दे, ताकि परमेश्वर वो ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने और इस संसार के ज्ञानियों को लज्जित करने वाला बन सके। परमेश्वर इसके लिए सके एक एक मेंबर्स को, एक एक बच्चे बुजुर्गों को, जवानों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को परमेश्वर तू आशीष प्रदान कर, हर एक को अपने लिए परमेश्वर तू खड़ा कर, ताकि हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट होने पाए। आज जो लोग पिता परमेश्वर जो एग्जाम्स देने गए हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पिता परमेश्वर, जॉब के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन में तेरी चमत्कार को देखने पाए और इस जॉब को हासिल करके तेरी सेवा तन मन धन से करे, तेरी महिमा करे और तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक बच्चों को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। हमारे जवानों को परमेश्वर आशीषित कर, ताकि हमारे जवान पिता परमेश्वर पढ़ लिख करके अच्छे रोजगार प्राप्त करें, इस संसार में पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता यहाँ पर हर एक बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की मनोकामनाएं यीशु के नाम में पूरा होने पाए। जो किसी कारणवश तेरे भवन में नहीं आ पाए, परमेश्वर दया करो अपने जीवन में निर्णय लेने पाए, वो तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार वो चलेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते
कि आपने हमारे जीवन को बहुतायत की आशीष दिया है। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपने महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने कमी घटी से भेंट अर्पित किए उनका भंडार को पिता मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। उनका भंडार सदा भरपूर रहे और उनका कटोरा उमड़ने पाए, छलकने पाए। परमेश्वर जो ऑनलाइन जो इस समय जो देख रहे हैं, जो इसके बाद देखते हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर। जो बीमार स्वस्थ उनको चंगाई दे, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर। जो विवाह के योग्य है पिता उनको सुटेबल लाइफ पार्टनर परमेश्वर तू दे। हर एक बच्चों के पढ़ाई को परमेश्वर तू आशीषित कर। हर एक बुजुर्गों को पिता परमेश्वर तू चंगाई भी दे, सांत्वना प्रदान कर और उनके आगे आगे चल। प्रभु इस नए वर्ष में आप हमारे आगे आगे चले और हमें से हर एक को पिता परमेश्वर उत्तम चारागाह में और सुखदायी जल के झरने के पास में परमेश्वर हमको लेकर के जाएं। और परमेश्वर हर एक के घायल हृदयों को परमेश्वर आप चंगाई प्रदान करें। हर एक को एक नया अभिषेक दे और हर एक का सम्मान बढ़ाए परमेश्वर, ताकि इस दुनिया में पिता परमेश्वर जैसा यीशु मसीह आपने पिता की महिमा किया वैसी प्रभु हम भी अपने जीवन के द्वारा से हम तेरी महिमा करने पाएं। पिता हम जब यहाँ से विदा होते हैं हमारी सहायता कर कि हम जहाँ भी रहें परमेश्वर तेरे मौजूदगी में रहते हुए जीवन के हर दिन को, हर पल को हम व्यतीत करने पाएं। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।